ट्रंप और ज़ेलेंस्की का जो स्पैट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, दैट्स फॉर वन। बट पूरे कहानी में इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस लेवल पे जाके अनप्रोफेशनल हो जाती है, क्लोज डोर्स के अंदर कितनी तरीके की बातें चल रही होती हैं, और वो बातें अगर फट के इस तरीके से बाहर आती हैं तो हाउ अगली इट कैन बी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है ये ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की के स्पैट में जो है हमें देखने को मिला। We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? अब इंपॉर्टेंट ये समझना है कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। यूक्रेन की जो तकलीफ है वो रशिया के साथ है क्यों? अगर रशिया के साथ यूक्रेन की तकलीफ है तो उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड इतना मजा क्यों ले रहा है? वो इस आग में घी क्यों डाल रहा है? वो इस आग में इस तरीके से पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है जैसे उसकी खुद की लड़ाई हो? और इसको समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। इसको समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द nitty-gritties of any decision that was taken back then. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank और इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने जो किया वो सही था, ट्रंप ने जो किया वो गलत था, किसी भी अतिथि को अपने घर में बुला के जो है इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से क्रूएल है ये आपको और हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है। इस पूरे कहानी में क्रिमिया पे पहले कब्जा कर लिया रशिया ने, उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से वो लड़ाई 2022 में एक फुल फ्लेजेड वॉर में बदल गई, जब पूरी तरीके से हमले को डिक्लेयर कर दिया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। वो सारी बातें अपनी जगह है। ऑफ कोर्स ज़ेलेंस्की अपने लोगों का सोचेगा, उसके लोग मारे गए हैं उसके बारे में सोचेगा, लेकिन फिर अगर आप कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसमें आपका स्वाभिमान झलकता है तो वैसा काम आप भीख मांग कर नहीं कर सकते हैं। आप वैसे काम किसी पर डिपेंडेंट होके नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन की पूरी लड़ाई उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाए जाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसे जो मदद में पैसे दिए जा रहे हैं, उसे जो लोन्स दिए जा रहे हैं, वो आखिरकार कल को यूक्रेन पर ही भारी पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो जो देश इस तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो संसाधन मौजूद हैं, जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उसके लिए एडवांस पे किया जा रहा है। देयर आर नो फ्री लंचेस। ये बात जग जाहिर है और इसीलिए ओवल ऑफिस में जाके ज़ेलेंस्की का ट्रंप और उसके कैबिनेट के साथ मिसबिहेव करना गलत था। चाहे उसे कितना भी प्रोवोक किया गया, वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर वो आर्थिक संसाधनों को के बारे में डील करने ही गया था, पहली। और दूसरी बात, वो अपने लिए एड लेने ही गया था और उसे पता था कि चूंकि
अमेरिकन डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा हाथ यूक्रेन की तरफ था रशिया की बर्बादी के लिए। डीप स्टेट उसे बहुत अलग अलग तरीके से मदद कर रहा था और इसीलिए उसने देखा कि अब ऐसी मदद वैसे भी आने वाली नहीं है, तो चलो ठीक है, इसको इसी तरीके का एक स्पेक्टिकल बना देते हैं कि पूरे मीडिया में कम से कम चर्चा तो हो। और वही हुआ। नुकसान इसमें ज़ेलेंस्की का ही होगा, नुकसान इसमें यूक्रेन के लोगों का ही होगा, वहां के जो सैनिक मारे गए हैं उनका ही होगा, क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होता है तो कब तक कोई पैसा दे देगा। अगर आप इसको समझेंगे कि कब तक कोई पैसा दे देगा, तो अभी ट्रंप ने जो आर्थिक मदद दी जाती थी यूएस की तरफ से, उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। अब आज की न्यूज में यह पता चल रहा है कि ईयू के जो लीडर्स हैं, माइनस यूके, ईयू के जो लीडर्स हैं वो साथ आ रहे हैं कि ठीक है, वी आर गोइंग टू हेल्प ज़ेलेंस्की इन अ मैनर कि उसे जो है फायदा हो और उसे जो है लोन दिया जाए। लोन दिया जाए, अंडरलाइन दैट वर्ड, लोन दिया जाए। वहां के लोगों को ही ये लोन चुकाना पड़ेगा। अभी वो अपने खून से चुकाएंगे और बाद में अपने संसाधनों को बेचकर चुकाएंगे। यूक्रेन के संसाधनों का बंदरबाट होने वाला है, ये मैं अभी भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, और ये भविष्यवाणी मैं इतिहास को देखकर ही कर रहा हूं। जर्मनी के साथ जो दोनों तरफ के लोगों ने किया, उसे दो भागों में बांट के किस तरीके से वहां के संसाधनों को लूट लिया, यह आपने और हमने इतिहास में पढ़ा है। बाकी देशों का जो हाल हुआ सो हुआ ही। तो आपको और हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर जो है अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन का ही है, यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। चींटी हाथी से नहीं लड़ सकती है, चाहे आप मुझे कितनी भी कहानी सुना दें कि अरे ऐसी कैसी बात है, चींटी तो हाथी के सूंड में घुस जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। जरूर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाथी भी तो बेवकूफ नहीं है। हाथी क्या चींटी को सूंड में घुसने देगा क्या? यही गेम में डिफरेंस है रियल लाइफ और किताबी ज्ञान में। बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत सारी बुरी चीजें हमें पढ़ाई गई, बुरे के साथ बुरा और भले के साथ भला किया जाता है, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स में नहीं बैठती है ये बात। तो ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। और अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ये रिएक्शन था कि सोचो अगर यहीं पर इंडिया होता और चाइना ने हमें इन्वेड कर दिया होता तो हम क्या करते। जरूर सवाल पूछना एकदम सही है, लेकिन फिर आप ये भी देखो कि हम यूक्रेन नहीं है और चाइना रशिया नहीं है। हम इन्वेड करने देंगे तो ना। और न्यूक्लियर डेटरेंट भी कोई बात होती है जो हमारे पास है। हर बार हम घुटनों पर नहीं आने वाले लोग हैं, और जिस तरीके से अभी भारत की उड़ान चल रही है उस समय तो डेफिनेटली ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, काम तो ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं बैकग्राउंड में। तो दैट इज व्हाट द आंसर इज टू ऑल द पीपल हु आर डिस्कसिंग कि अगर इंडिया के साथ हुआ होता तो क्या हम यही कहते जो हम ज़ेलेंस्की के लिए कह रहे हैं। तो बहुत फर्क है, और इंडिया ने किसी जोकर को नहीं चुना है। इंडिया ने जिस आयरन मैन को चुना है वो ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा, तो उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।